So hey guys, what's up? Welcome all of you in this revision video of exemption chapter. I hope you're enjoying all my rapid revision videos of CMA Final IDT, and I'm very sure that this is going to help you before your examinations. We've already taken all the revision sessions of supply chapter, registration chapter, value of supply, time of supply, place of supply. ये सारे के सारे रैपिड रिवीजन मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया है, सीए निकुंज गोइंका टैक्स मेंटर. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द channel and press the bell icon button for all the real time updates. Today we are going to start with a chapter, exemptions. Yes, it is the most awaited chapter on the demand of the students, which I am taking the revision of this chapter. कि सर ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल याद नहीं रहता है, ये इतना डिफिकल्ट चैप्टर है, इतने सारे प्रोविजन है, इतने सारे सर्विसेज है, हमें कैसे याद रहेगा सर कि इसका जीएसटी एग्जेम्पशन है कि नहीं है. तो सबसे बड़ा गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं इस चैप्टर में, दैट दे tend to learn the provisions, they tend to mug up the exemption services, which they don't have to do it, because in examination you will not be asked to explain the exemption of this particular service. Rather, you will be given some 5 or 6 services, and then you have to understand and you have to determine the taxability of the given services. तो वहां पे you just have to know whether this service is exempt or not. क्या आपने कहीं पे भी exemption notification में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो you have to what is the purpose behind this exemption? The purpose behind this exemption is that government wants to basically exempt GST on those basic necessity supplies where the customer or where the consumer is taking in the nature of the basic necessity. Like there is no lavishness, there is a basic necessity of taking that service, because in GST we know that ultimately the burden is falling on the consumer, the burden is falling on the customer. So say for example in industry, if I say educational industry, education industry starts from school, colleges, all these universities. If they charge fees to their students, तो students को वो एक educational services दे रहे हैं, and education services is very important for the society to grow overall, and that is why what government has done, they have exempt such kind of services. So you only have to understand from examination point of view कि what is the nature of the service which is exempt, and in that service what are the kinds, what are the types of activities which the government has specifically exempted from GST. तो प्लीज ये चैप्टर को लर्न बिल्कुल मत करना, ये चैप्टर को जितना ज्यादा स्टोरी बुक की तरह रीड कर सकते हो वो ज्यादा रीड करना. Right guys, so definitely in the revision class, rapid revision class, I am going to touch upon those services which are very very important for your examinations, and you should definitely focus on those services first. Rather there are so many services, मुझे नहीं लगता कि आपको सारा सर्विसेज अभी एग्जाम के एक दिन पहले फोकस करना चाहिए या whatever, एक महीना फोकस पहले फोकस करना चाहिए. आई थिंक आपने जब क्लासेस कंप्लीट कर ही लिया है उसके बाद आप ये रैपिड रिविजन वीडियो देख रहे हो, तो यू शुड गो थ्रू एकदम समराइज्ड व्यू आपको लेना चाहिए कि कौन कौन से सर्विसेज हैं और उसमें बेसिक पॉइंट्स क्या क्या है जो आपको याद रखना है. यू डोंट हैव टू लर्न इट, यू जस्ट हैव टू अप्लाई, यू शुड नो हाउ टू अप्लाई द प्रोविजन इन दी गिवन क्वेश्चन. तो चलिए सर शुरुआत करते हैं. ये जो रिविजन मटेरियल मैं यूज कर रहा हूं ये मेरा स्टडी मटेरियल ही है. This is the study material which I am using for my exemption, and definitely I'll be uploading this in your, मतलब जो मेरे already existing students हैं उनके पास तो ये material है ही, but जो बच्चे YouTube में ये session देख रहे हैं तो definitely आपके लिए भी notes जो है हमारे Telegram group में circulate कर दिया जाएगा, आप जरूर वहां से चेकआउट कर लीजिएगा. एग्जेम्पशन, लेट्स बिगिन एग्जेम्पशंस. तो गाइस एग्जेम्पशन पढ़ने के पहले सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड एग्जाम सप्लाई. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एग्जाम सप्लाई? सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि एग्जाम सप्लाई क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एग्जाम सप्लाई? तो एग्जाम सप्लाई मींस following supplies which attracts nil rate of tax, which is wholly exempt under a notification issued under section 11. So guys, ultimately this chapter is coming from the section that is 11, exemption under section 11, and it includes non taxable supply. It includes क्या? Non taxable supply. तो nil rated supply हो गया, wholly exempt from tax under a notification हो गया, and it includes non taxable supply. Now what is non taxable supply? Non taxable supply, supply on which tax is not leviable, like alcoholic liquor, petroleum products पे GST levy नहीं की जाती है. Power to grant exemption from IGST has been granted by section number 11 of IGST Act and section number 6, सेक्शन नंबर 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन नंबर 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट. मतलब जो सीजीएसटी एक्ट में एग्जेम्पशन दिया गया है वो सेक्शन 11 में दिया गया है, जो आईजीएसटी एक्ट में एग्जेम्पशन दिया गया है वो सेक्शन 6 में दिया गया है. ठीक है. नाउ एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ जीएसटी का स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या है सेक्शन 11 में? दैट यू डोंट हैव टू पे एनी जीएसटी ऑन विच absolute exemption has been granted under the notification or under the act, and the supplier is not liable to collect any tax on supply of goods and services. ठीक है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन इन दिस, दैट एक्सप्लेनेशन, I repeat guys, not a provision in the
नोटिफिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान से सुनो, ये जो भी एग्जामिशन अपने पढ़ रहे हैं, दिस इज अ नोटिफिकेशन. व्हाट इज द नेम ऑफ द नंबर ऑफ द नोटिफिकेशन? Notification number 12 by 17, Central Tax Rate, dated 28 June 2017. Guys, you have to remember this number. Notification number 12/2017, CT मतलब Central Tax, R मतलब Rate, dated 28 June 2017. This is the exemption notification which actually talks about the services which are exempted in CGST notification. Right, guys? So now इन दिस नोटिफिकेशन देर आर वेरियस एंट्री 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारे सर्विसेज है जिसको एंट्री के फॉर्म में डिवाइड किया गया है. नाउ इन दैट एंट्री, as per the law, explanation can be inserted. Explanation does not bring any new things, it just clarifies the intent of the law. So explanation can be inserted in that entry within 1 year. I repeat, explanation can be inserted in an entry within 1 year, and if it is inserted within 1 year, it will going to be have retrospective impact. यानी सर मान लो, अगर कोई एग्जांपल मान लो 1st August 2018 को an amendment has come in this notification. What is the amendment? The amendment is like new entry has been inserted. As you all know, एग्जामिशन चैप्टर में अमेंडमेंट्स डिलीशंस होते रहते हैं. तो न्यू service got exempted on 1st August 2018. Now we will calculate this 1 year limit from 1st August. Say for example entry number 43A. This is a new entry in this notification. Now this entry number 43A which got introduced on this particular date 1st August 2018, and if within 1 year from this 1st August 2018 any explanation like say for example 25th July 2019, ठीक है, ये 1 year के अंदर हो गया 25th July 2019 from 1st August, तो this explanation will have impact as if it was applicable from 1st August 2018. ये explanation की impact retrospective हो जाएगी. This okay, but if the explanation is issued after 1 year, say for example 1st September 2019, so definitely then this explanation will not have retrospective impact and it will have prospective impact. Am I clear on this? Yes sir, ये अपने पढ़ चुके थे. तो ये था सीबीएसई का सर्कुलर जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि सर जो भी आप 1 year कैलकुलेट करेंगे यू विल कैलकुलेट. अब इसमें क्या पॉइंट था मैं आपको बताता हूँ गाइस. लाइक नोटिफिकेशन हैज कम ऑन 28 जून, राइट, बट यू विल चेक द डेट ऑफ द एंट्री कि एंट्री कब से है. से फॉर एग्जांपल नोटिफिकेशन नंबर 12 बाय 2017 में एंट्री नंबर 1 था. नाउ दिस एंट्री 1 वाज इंसर्टेड ऑन दिस डेट, तो देन यू विल कैलकुलेट 1 year फ्रॉम दिस डेट. बट अगर आपकी एंट्री 43A है, अगर आपकी एंट्री 43 वो इस डेट को इंट्रोड्यूस हुआ, तो यू हैव टू कैलकुलेट 1 year फ्रॉम द डेट दैट एंट्री केम इनटू फोर्स एंड नॉट फ्रॉम द ओरिजिनल डेट. So this was clarified by this CBSE circular that you will calculate 1 year from the date of the inception of the entry and not the original date का notification. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा इन सेक्शन नंबर 11 गाइस. ओके, सो देयर आर टू वेज बाय विच गवर्नमेंट कैन ग्रांट एग्जेम्पशन. एक है नोटिफिकेशन एंड अनदर इज स्पेशल ऑर्डर. नोटिफिकेशन कैन बी इशूड अंडर section number 11 of CGST Act, and this will definitely be issued on the recommendation of GST Council. The government will issue notification on the recommendation of GST Council. You know, every month or 2 months or 3 months quarter में GST Council meets and they might take decisions regarding, you know, deleting the exemption or increasing the exemption or adding the exemption, and it will be done issued by the government by a notification in the official gadget, and this will be done in the public interest. Same special order में क्या फर्क है? Special order is basically in exceptional circumstances. Special order is never in normal circumstances. Special order is always issued by the government again on the recommendation of GST Council, exempting a particular supply of goods and service in the public interest under exceptional circumstances, which is stated in that particular order. So there are two ways by which GST में exemptions are granted, either by a notification or by special order. You don't have to learn special orders. There are although many special orders जिसके through बाकी बहुत सारे supplies को exempt किया गया है time to time, but in our examination question will come only from the services. गुड्स भी गाइज आपके मतलब एग्जाम में ऐसा नहीं है, जर्नल नॉलेज के लिए खाली आपको बस ये याद रखना है, जैसे अनब्रांडेड आटा, मैदा, बेसन, अनपैक्ड फूड ग्रेन्स, मिल्क, एग्स, कर्ड, लस्सी, फ्रेश वेजिटेबल्स और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो जीएसटी में एग्जेम्प्ट होते हैं. जनरली गुड्स आपके एग्जाम में नहीं आता, आपके एग्जाम में सर्विसेज
is very very important. Services से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि what are the exact services which are exempted from GST. We'll start with number one, charitable activities. So when I say charitable activities, this charitable activity should be provided by a registered charitable trust under Income Tax Act, and this charitable activity which is provided, this should be the specified charitable activity which is given in the notification. There is a definition of this charitable activity which is given in the notification. See guys, you have to understand one thing. Whatever revision we are doing today for this chapter is just the notification. अपने खाली notification पढ़ रहे हैं कि what are the services in notification number 12 by 2017 to CTR dated 28 June. इसमें क्या क्या सर्विसेज है वही अपने पढ़ाई कर रहे हैं. चैरिटेबल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? चैरिटेबल एक्टिविटी में 5 चीज आता है. पब्लिक हेल्थ आता है, पब्लिक अवेयरनेस आता है, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन और योगा स्पिरिचुअलिटी आता है, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 65 ईयर्स रिसाइडिंग इन रूरल एरिया. यहाँ से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है. अगर ये अर्बन एरिया में होता तो ये taxable होता. Preservation of environment. So these are some 5 kinds of charitable activities which are specified, and if it is provided by a registered charitable trust, only then it is exempted under GST, else it is not exempted. It is fully taxable. तो definitely GST में notification से आपको पता चलेगा कि exempt है. अगर exempt है तो फिर वो taxable नहीं होगा, एंड अगर वो एग्जेम्प्ट ही नहीं है तो बाय डिफॉल्ट दैट इज अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस. ये सब मेरे कुछ इलस्ट्रेशंस थे जो मैंने अपने रेगुलर क्लासेस में कराया था. जो बच्चे यूट्यूब में देख रहे हैं गाइस, आपको ये सब इलस्ट्रेशंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप अपना क्लासेस अगर कर लिए होंगे, ये रिविजन खाली हम कर रहे हैं प्रोविजंस का, खाली प्रोविजन का रिवीजन कर रहे हैं. दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ इसमें के ऊपर एक सीबीएसई का सर्कुलर आया था दैट व्हाट अबाउट जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ऑन द रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स व्हिच इज कंडक्टेड by this charitable trust for advancement of religion, spirituality or yoga. Now see, understand one thing. Say for example, any particular temple, any particular trust, it is conducting a program, residential program, and all over India many people are coming and taking a course or taking a particular spirituality course. So in that situation, they are being provided a residential accommodation, they are being provided prasad, they have been provided food, some other activities have been provided to them in relation to the advancement of spirituality. So what is the applicability of GST in this case? तो CBIC ने क्लैरिफाई किया. सी सिंपल है, रेसिडेंशियल प्रोग्राम जो है दैट इज कंडक्टेड by taking a fee which includes accommodation, which includes many other activities, but the predominant activity, यहाँ पे composite supply का meaning देखा गया है. Predominant element is what? Predominant element is the residential program. Of the residential program is basically spirituality, yoga और एडवांसमेंट ऑफ एनी रिलीजन. वहां पे अल्टीमेट पर्पस क्या है? स्पिरिचुअलिटी. तो दिस इज टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी. बट इफ द प्रेडोमिनेंट एलिमेंट इज प्रोवाइडिंग फूड, इफ द प्रेडोमिनेंट एलिमेंट इज प्रोवाइडिंग अ काइंड ऑफ अकोमोडेशन, then in that situation this is totally taxable under GST. मतलब सिंपल से मान लो आप 10 डे वर्कशॉप अटेंड करते हो इस्कॉन टेम्पल में, तो इस्कॉन टेम्पल ऑब्वियसली वो 10 डे वर्कशॉप करवा रहा है एक पर्टिकुलर योग मतलब स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है, इट इज इनटू स्पिरिचुअलिटी. या फिर आप मान लो रामदेव बाबा के ट्रस्ट, रामदेव बाबा के पास गए, उन्होंने योगा सिखाया, योगा का कोई कोर्स ज्वाइन किया. तो योगा का कोई कोर्स अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो योग आपको सिखाया जा रहा है, योग के साथ साथ आपको खाना भी दिया जा रहा है, आपको अकोमोडेशन भी दिया जा रहा है, तो इसमें जीएसटी क्या होगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा. पतंजलि, राइट? समझ में आया? यस सर, दैट्स द ब्यूटी ऑफ टैक्स. रिलीजियस सेरेमनी, पंडित जी बड़ा पंडित पूजा करवा रहा है, ठीक है, पंडित जी जब पूजा करवा रहे हैं तो उनको जो भी कंसिडरेशन मिलेगा, भाई पंडित जी को जीएसटी नहीं लगाना, ठीक है. तो वॉट एवर रिलीजियस सेरेमनी विच इज बीन कंडक्टेड बाय पंडित जी, दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड, चाहे वो किसी भी ओकेजन में कराए. दूसरा रेंटिंग होगा. अरे वेरी इंपॉर्टेंट, रेंटिंग होगा. क्या चीज है? एक रिलीजियस प्लेस का, जो कि जनरली इट इज ओन्ड बाय अ पर्सन, मैनेज्ड बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA. बेसिकली चैरिटेबल ट्रस्ट इसको ओन कर रहा है एंड वो उसको रेंटिंग कर रहा है, रिलीजियस प्लेस को रेंटिंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली रिलीजियस पर्पस के लिए यूज कर रहा होगा, तो दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड. कंज्यूमर उसको रिलीजियस पर्पस के लिए यूज कर रहा होगा, टोटली एग्जेम्प्टेड. बट इफ द कॉस्ट इज मोर देन अ लिमिट, अगर कंसिडरेशन इज मोर देन अ लिमिट, देन इट इज टैक्सेबल. क्या होगा? रेंटिंग ऑफ रूम्स, रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल्स एंड रेंटिंग ऑफ शॉप्स. अगर रूम्स का बात करेंगे तो 1000 और मोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1000 होते ही टैक्सेबल हो जाएगा. 1000 होते ही क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा. मतलब 999 तक एग्जेम्प्ट होगा, बट इफ इट इज 1000 और मोर, देन इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल. रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल्स एंड चार्जेस, अगर 10,000 और मोर हो गया पर डे, क्या हो गया? 10,000 और मोर हो गया, तो दैट इज टोटली टैक्सेबल. सिमिलरली
शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पे रेंट पर मंथ दिया जाता है, ये भी अगर 10,000 पर मंथ और मोर हो गया तो दिस विल बी टोटली टैक्सेबल। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, आपको याद होगा अपने बात किए थे सप्लाई चैप्टर में भी, यहां पे भी सेम बात किया जा रहा है। इफ डोनेशन हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम अ चैरिटेबल, इफ डोनेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय अ चैरिटेबल ट्रस्ट फ्रॉम अ पर्सन एंड दैट against that donation, that charitable purpose, that charitable trust is doing some specific advertisement for that particular donation which they are receiving, that tantamounts to supply of service, and this is a consideration, and in this no exemption will be applicable, GST will be levied. You know, there was a circular which we read in the supply chapter, this is also there in the exemption chapter. ठीक है, pilgrimage services, any kind of pilgrimage services given by a specified organization, not all. पिलग्रिमेज सर्विसेज, अमरनाथ की यात्रा सबको पता है, स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन अगर सर्विसेज दे रहा है, कंसिडरेशन रिसीव कर रहा है, एंड दे आर गिविंग पिलग्रिमेज सर्विसेज, रिलीजियस पिलग्रिमेज सर्विसेज which is facilitated by government of India, only those services will be exempted. अगर कोई private organization pilgrimage services दे रहा है, that is fully taxable. So what do you mean, what is the, who are specified organization here? They are Kumaon Mandalam Vikas Nigam Limited, a government of Uttarakhand undertaking, or Hajj Committee of India and State Hajj Committee. Very important, coaching or training, recreational coaching or training, coaching देना या ट्रेनिंग देना, आर्ट्स में कल्चर में, आर्ट्स में कल्चर में कोई भी देगा, एनी वन गिविंग यू ट्रेनिंग इन आर्ट्स, आपके आर्ट्स टीचर आपको आर्ट्स का पेंटिंग करना सिखा रहे हैं या ड्राइंग करना सिखा रहे हैं या कोई भी आर्टिस्टिक वर्क करना सिखा रहे हैं, कोई भी तरह का आर्ट सिखा रहे हैं, कोई भी तरह का कल्चर सिखा रहे हैं, इट कैन बी अ डांस, इट कैन बी अ फॉर्म ऑफ डांस, कुछ भी सिखा रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी करना सिखा रहे हैं, दे विल नॉट चार्ज, दे विल चार्ज यू कंसिडरेशन, नो जीएसटी। स्पोर्ट्स अगर आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, बट दिस स्पोर्ट्स विल बी डन बाय अ चैरिटेबल एंटिटी, this sports की training should be done by a charitable entity, in that situation it will be totally exempted in GST. यानी सर ACS मैंने बताया था, आर्ट्स कल्चर स्पोर्ट्स, ACS आर्ट्स कल्चर स्पोर्ट्स, आर्ट्स कल्चर स्पोर्ट्स के अलावा कोई भी कोचिंग ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, दैट विल बी टोटली टैक्सेबल इन GST। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज में दो तरह के सर्विसेज होते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट सर्विसेज रिसीव करता है। तो इफ गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, उसमें भी बहुत सारे एग्जेम्पशंस है, गवर्नमेंट इज रिसीविंग सब सर्विसेज, उसमें भी बहुत सारे एग्जेम्पशंस है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट, वी शुड नो अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, CG, SG, लोकल अथॉरिटी, LA, UT, यूनियन टेरिटरी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी एंड गवर्नमेंटल एंटिटी। तो ये पांच जन, छह जन के बारे में अपने को पता होना चाहिए, CG, SG, UT, LA, GA, GE, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी। What do you mean by government authority? Basically, it is any body set up under an act of parliament or a state legislative assembly or established by government where 90% control is by the government, and it is done basically, it is created to basically carry out and function entrusted to a municipality under Article 243W and panchayat under 243G। कोई भी काम के लिए उसको सेटअप किया जाता है, दिस इज गवर्नमेंटल authority. What is government entity? They are basically also set up under an act of parliament, but they are basically set up to carry out any function. जो भी गवर्नमेंट कर सकता है वो गवर्नमेंट एंटिटी कर सकता है, जो पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी कर सकता है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस। तो सर जो गवर्नमेंट कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी कर सकता है, वो गवर्नमेंट एंटिटी भी कर सकता है। जो पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड किया है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी भी कर सकता है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट का सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पर अपने सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट अथॉरिटी का, कि गवर्नमेंट अथॉरिटी, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी, लोकल अथॉरिटी ने किसको सेटअप कर दिया, इन्होंने सेटअप करवा दिया, GA को सेटअप करवा दिया। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी अगर कोई भी म्यूनिसिपैलिटी फंक्शन करे, कोई भी पंचायती फंक्शन करे, पंचायत अंडर 243G एंड म्यूनिसिपैलिटी अंडर 243W, वो सारा लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज है विच आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन बी डन बाय दिस म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत। तो ये सर्विसेज अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी दे रहा है तो दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में ये बिल्कुल आएगा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, बिल्कुल आएगा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। की सर्विसेज अगर सरकार प्रोवाइड कर रही है, कौन प्रोवाइड कर रहा है? CG, SG, UT, LA, यहां पे GAG नहीं है, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, ऑल सर्विसेज आर exempt excluding DATA, डेटा को छोड़कर सारे सर्विसेज एग्जेम्प्ट है जो गवर्नमेंट दे रही है, डेटा को छोड़कर सारे सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। डेटा मींस व्हाट? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज जो सील दे रहा है, सील मतलब स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट,
एजेंसी सर्विसेज एंड लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज। लेकिन ये अगर नॉन गवर्नमेंट को दे रहा है तो ही टैक्सेबल होगा। ये अगर गवर्नमेंट को दे रहा है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, स्पीड पोस्ट की सर्विसेज अगर गवर्नमेंट को देगा तो ये एग्जेम्प्ट है। लेट मी टेल यू, बिकॉज यहां पर लिखा है टू पर्सन अदर देन सेंट्रल स्टेट यूटी, तो यहां पे अदर देन नॉन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा सर, एयरक्राफ्ट और वेसल, ए स्टैंड्स फॉर एयरक्राफ्ट और वेसल रिलेटेड सर्विसेज इनसाइड और आउटसाइड द पोर्ट और एयरपोर्ट। T stands for transportation of goods or passengers. Whatever services given related to transportation of goods and passengers, that will be totally exempt, taxable in GST. ये GST में totally taxable हो जाएगा. And lastly, very important, any service provided to business entity अदर देन 123, मतलब सर क्लियर है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाला, एयरक्राफ्ट वेसल वाला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स वाला अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को देगा तो भी टैक्सेबल होगा, लेकिन बाद बाकी सर्विसेज अगर बिजनेस एंटिटी को देगा तो ही टैक्सेबल होगा। आई रिपीट, एनी अदर सर्विस अदर देन 123। 123 में क्या हो गया? डेटा का डैट। 123 क्या हो गया? डेटा का डैट। डैट क्या हो गया? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एयरक्राफ्ट वेसल, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। इफ दिस इज गिवन टू इवन अ नॉन बिजनेस एंटिटी दैट इज टैक्सेबल, लेट मी टेल यू। लेकिन अगर एनी अदर सर्विस केवल बिजनेस एंटिटी को दिया जा रहा है तो ही टैक्सेबल होगा। नाउ यू टेल मी, एनी अदर सर्विस अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को दिया जा रहा है तो क्या टैक्सेबल होगा? नहीं टैक्सेबल होगा। दिस विल नॉट बी टैक्सेबल। This will not be taxable because any other service is given to a non-business entity. Am I clear on this? Yes, sir. Sir, ये मैं थोड़ा टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट का थोड़ा सा देखिए गाइज, आई नो फाइनल स्टूडेंट है, आप लोग मैच्योर्ड एनफ हो। मैं किस में ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, किस में कम टाइम ले रहा हूँ, यू शुड नो दैट। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चैप्टर। इफ द नेचर ऑफ द चैप्टर सच, आई विल टेक सम टाइम, बट अगर नेचर ऑफ द चैप्टर इज इजी, डेफिनेटली इट डिमांड्स नॉट मच टाइम फ्रॉम मी। आप खुद से कर सकते हो, और अगर आपको नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो देखना, क्योंकि ये यूट्यूब में अपलोडेड रहेगा। नेक्स्ट सर, अब बात आती है, अब प्रॉब्लम क्या है? हर एक सर्विस जो बिजनेस एंटिटी में है, प्रोवाइड किया गया बाय गवर्नमेंट, दैट इज टैक्सेबल। ये थोड़ी ना हो सकता है, तो गवर्नमेंट इसका एग्जेम्पशंस लाना स्टार्ट किया। सबसे पहला एग्जेम्पशन गवर्नमेंट किया, अरे ऐसा नहीं होगा, अरे ऐसा नहीं होगा। इफ गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, अब कुछ याद आ रहा है बेटा? रिवर्स चार्ज याद आ रहा है? रिवर्स चार्ज याद आ रहा है? हाँ सर, गवर्नमेंट अगर सर्विस दे रहा है किसी भी बिजनेस एंटिटी को तो आरसीएम लगेगा। तो आरसीएम लगने वाला मतलब लायबिलिटी टू पे टैक्स विल बी ऑन द रेसिपिएंट, नॉट ऑन द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एग्जेम्पशन विल बी वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस एंटिटी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट पता है क्या किया? छोटे छोटे बिजनेस एंटिटीज को मना कर दिया। इफ गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग एनी सर्विस, बट डीएटी के ऊपर कोई एग्जेम्पशन नहीं है, डीएटी के ऊपर कोई एग्जेम्पशन नहीं है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर भी कोई एग्जेम्पशन नहीं है। मीनिंग देयर बाय दैट इफ गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज to a business entity where their turnover is less than the limit, मतलब 10 lakh, 20 lakh, 40 lakh, whatever the applicable limit is there in that case, मतलब उनके लिए अगर 40 lakh का लिमिट है तो 40 lakh से कम अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर था लास्ट ईयर, अगर मैं एज अ गवर्नमेंट तुम्हें सर्विस दिया जहां पे तुम्हारी टर्नओवर पिछले साल 40 लाख से कम थी, तो ये सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कैसा भी सर्विस हो। लेकिन डीएटी हमेशा टैक्सेबल होगा, मतलब गवर्नमेंट अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सर्विस दे रहा है तो ये हमेशा टैक्सेबल होगा। एंड गाइज, अगर आपको याद होगा आरसीए में ही हमने डाट पढ़ा था, प्लीज याद रखिएगा, आरसीए में डाट पढ़ा था, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एयरक्राफ्ट वेसल, रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये चार सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होता है, अगर आपको याद होगा सेक्शन 9 सब सेक्शन 3। मतलब ध्यान से सुनना, ये सारे सर्विसेज में क्या लगने वाला है? फॉरवर्ड चार्ज। ये सारे सर्विसेज में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाला, एयरक्राफ्ट वेसल वाला और ट्रांसपोर्टेशन, और देखो यहां पे भी इन्होंने रेंटिंग कवर कर दिया, यानी ये तो डीएटी है और ये आर है, अल्टीमेटली आरसीएम का ही, तो आरसीएम का एक्सक्लूजन है। दिस इज अल्टीमेटली बट आरसीएम का एक्सक्लूजन, कि जो आरसीएम से गवर्नमेंट सर्विस को हटाया गया था, तो वो यहाँ पे एग्जेम्पशन से भी हटा दिया कि नहीं, गवर्नमेंट तुमको ही जीएसटी चार्ज करना, तुम ही पे करेगा, तुम्हारा रेसिपिएंट पे नहीं करेगा। Am I clear on this? Even if the business entity जो जिसको आप सर्विस दे रहे हो उसका टर्नओवर लिमिट कम है, does not matter, because this exemption is not applicable for these 4 services. बात बाकी के लिए एप्लीकेबल है, बात बाकी के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर है गाइस? देखिए, जो बच्चे लाइव कर रहे हैं कम से कम आप जवाब दीजिए, वरना आपका लाइव करने का कोई मतलब नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक दूसरे को सर्विस दे रहा है, सेंट्रल स्टेट को दे रहा है, स्टेट सेंट्रल को दे रहा है, लोकल अथॉरिटी को, एक दूसरे इंटर डिपार्टमेंट सर्विस दिया जा रहा है, देन इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। बट डीएटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, डीएटी के लिए फुल्ली टैक्सेबल होगा, डीएटी के लिए ये सर्विस फुल्ली टैक्सेबल होगा, इवन इफ इट इज प्रोवाइडेड टू वन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट गिविंग डिपार्टमेंट ऑफ, देखो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाला बात अलग है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाली सर्विस अदर देन गवर्नमेंट को दिया जाएगा तो ही टैक्सेबल है। लेकिन मान लो एयरक्राफ्ट वेसल हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स वाली सर्विस हो गई, जो गवर्नमेंट एक दूसरे को दिया जा रहा है, तो वहां पे सर ये डीएटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये डीएटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा।
देन कंसिडरेशन चेक किया जाएगा. इफ द गवर्नमेंट सर्विसेज का कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 5000 इट इज टोटली एग्जेम्प्टेड, बट अगेन इट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन दोज थ्री सर्विसेज. वो थ्री सर्विसेज फुल्ली टैक्सेबल होगा. एंड इफ इट इज अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस विच इज रनिंग फॉर मोर देन 3 months, तो इन दिस सिचुएशन दिस 5000 विल बी फॉर अ ईयर. मतलब सर आपको ये 5000 का जो लिमिट है ये ईयरली लिमिट है. से फॉर एग्जांपल आपने कंटिन्यूस सप्लाई किया, 10,000 का अमाउंट है, 2 years सर्विस हुआ, 5000 इस साल, 5000 दूसरा साल, नो जीएसटी. No GST because this 5000 ka limit will be applicable in a particular financial year. Then comes services supplied by central, state, UT, local by allowing a business entity to operate as a telecom service provider. Basically telecom license fees पे GST exempt है, but only for that period जो prior to 1st April 2016 यूज किए थे. उसके पहले जो लाइसेंस इशू किया गया था, जो पेमेंट कर दिए थे लाइसेंस का, उनके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट है. बट अभी जो पेमेंट कर रहे हैं दैट इज टोटली एग्जेम्प्ट टैक्सेबल. सर गवर्नमेंट अगर रजिस्ट्रेशन की सर्विस दे रहा है अंडर एनी अदर लॉ, टेस्टिंग की सर्विस दे रहा है, कैलिब्रेशन की सर्विस दे रहा है, सेफ्टी चेक, सर्टिफिकेशन relating to protection or safety of workers, consumers or public at large, that is totally exempted. Passport, birth certificate, driving license, death certificate, birth certificate, ये सब सारे services exempt है. वेरी इंपॉर्टेंट, टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे अपने बात करेंगे लिक्विडेटेड डैमेजेस का. सर लिक्विडेटेड डैमेजेस जो होता है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट से फॉर एग्जांपल आई अग्रीड टू सप्लाई यू समथिंग, बट इन द इवेंट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आई हैव डन अ ब्रीच, तो वो ब्रीच की वजह से मुझे आपको कुछ कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी. तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा? द आंसर इज नो. इफ यू रिमेंबर अपने शेड्यूल 2 पढ़े थे, अग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन और टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, एंड दैट इज वाई यहाँ पे एग्जेम्पशन क्लियरली दिया गया है कि अगर गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है, मतलब गवर्नमेंट अगर पेनल्टी ले रहा है, लिक्विडेटेड डैमेजेस ले रहा है पर्सन टू ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच वाज एंटर्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट विल बी टोटली एग्जेम्प्टेड बिकॉज इट इज गिवन इन द नोटिफिकेशन दैट गवर्नमेंट अगर सर्विस दे रहा है बाय टॉलरेटिंग, कुछ चीज को सहना भी एक तरह का सप्लाई होता है. Tolerating something is also a supply of service. Not doing anything is also a supply of service. Everything we have read in schedule number 2 para number 5 clause E. If you remember अपने supply chapter में किए थे, फटाफट जाके वीडियो देख लेना. Tolerating non-performance of a contract for which consideration in the form of liquidated damages payable to the government, that is also exempted. Assignment of right to use natural resources to an individual farmer, like farmer can get any rights towards natural resources like land allotment हो गया, डेवलपमेंट राइट्स हो गया. इफ गवर्नमेंट इज गिविंग any rights to use natural resources to an individual farmer for cultivation of plants or agricultural produce, in that situation that service is totally exempted. गवर्नमेंट अगर सप्लाई करे तो उस पर एग्जेम्पशन दे दिया जाएगा. ये बेसिकली कस्टम्स के लिए सेंट्रल, स्टेट, यूटी, लोकल अथॉरिटी इफ दे आर गिविंग सर्विसेज बाय डेप्यूटिंग ऑफिसर्स ऑन आफ्टर ऑफिस आवर्स, लाइक इसको अपने बोलते हैं मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस, लाइक ऑन संडे, सैटरडे, संडेज और नॉन वर्किंग डेज. इफ extra staff has been employed by the department to clear your imported goods, in that situation you have to pay some extra charges that will be not taxable in GST. Very important, grants. Sir, government entity works on behalf of the government, so government entity also gets some grant from the government. So government entity if giving a service to government against consideration received from government in the form of grant, so in that situation that will be totally exempted under GST. Old age home, जितने भी ओल्ड एज होम्स होते हैं जो गवर्नमेंट रन करता है, प्राइवेट सेक्टर का बात नहीं कर रहा है, ओल्ड एज होम जो गवर्नमेंट रन करता है, गाइस बिलीव मी, अगर आप ये क्लास पूरा देख लेते हो तो आपका एग्जेम्पशन चैप्टर से जो डर है वो निकल जाएगा. राइट तो प्लीज लास्ट तक वेट करिएगा. हो सकता है बीच बीच का सर्विसेज आपको याद नहीं होगा, तो दैट इज अ गुड थिंग फॉर यू दैट द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि मुझे सर्विस याद नहीं है, वहां पे एक मार्क लगा लीजिए कि मुझे सर्विस रिवाइज करना है जब मैं घर पे खुद से पढ़ूंगा. ठीक है, इधर उधर मत देखिए, क्लास में टेंशन दीजिए. ओल्ड एज होम रन बाय गवर्नमेंट, ओल्ड एज होम रन बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ओल्ड एज होम रन कर रहा है, खुद गवर्नमेंट की ओल्ड एज होम है, एंड इट इज एन एंटिटी, चैरिटेबल ट्रस्ट रन कर रहा है, एंड दे आर गिविंग दिस सर्विस टू अ रेसिडेंट जिसका एज 60 और मोर, ऑब्वियसली they are senior citizen and the consideration is not exceeding 25,000 per month per member. Obviously they will charge something, जहाँ पे consideration 25,000 per month per member per resident per month. अगर 25,000 से ज़्यादा नहीं है तो it is totally exempted, and obviously the charges will be including boarding, lodging and maintenance, सब कुछ मिलाकर. ठीक है. Next है सर public sector undertakings. Public sector undertakings generally take loans from the banks, but for taking the loan from the banks, that loans has to be guaranteed by the government. So whatever guarantee governments give for the loans given to the public sector undertakings to the banking companies, that
government basically charges a guarantee fees, commission from the public sector undertaking. So similarly, service supplied by government to their undertakings or PSUs by way of guaranteeing the loans taken by undertakings or PSU from the banks या financial institution, that will also be totally exempted. रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल, जिसे आप पढ़ लेना गाइस, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर में अगर आप रजिस्टर्ड हो एंड यू आर अ रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल, लाइक यू कैन गिव काउंसलिंग, थेरेपीज, यू नो, मतलब जो भी थोड़े से, आई होप यू नो दैट, कि जो मेंटली अनसाउंड होते हैं, जो थोड़े से ड्रग्स में चले जाते हैं, या फिर जो एज के पहले दे टेंड टू कंट्रोल देयर, यू नो, अनएबल टू कंट्रोल देयर एंगर, तो उनको डेफिनेटली बहुत सारे थेरेपीज चाहिए होते हैं. तो ये जो थेरेपीज चाहिए होते हैं, ये रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल के एक्ट में रजिस्टर्ड है, दे आर एक्चुअली गिविंग द सर्विस, एंड दिस एक्टिविटी इज बेसिकली डन एट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट्स. तो व्हाट आर सर्विसेज व्हिच आर डन given by this rehabilitation professionals, that is totally exempted in GST. ये GST में totally exempt होगा. Very important, national permit latest amendment है. national permit क्या हो गया guys? कुछ कुछ roads goods carriages होते हैं जो all India में कहीं पे भी, even contiguous zones में, even in those zones which are basically close to the border, सोचो LOC के तरफ जा सकते हैं, या जहाँ पे normal goods carriages को जाना अलाउड नहीं है, बट वो लेकर जा सकते हैं. जनरली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में लोग आ जाते हैं. तो अगर नेशनल परमिट दिया गया दैट दे कैन गो इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, इन एनी पार्ट ऑफ द कॉन्टिगुअस स्टेट्स, तो द नेशनल परमिट का फीस उनको देना पड़ेगा. ओनली देन दे विल बी एबल टू run their carriages throughout the India. So whatever national permit fees is, you know, they have to pay to the government, that is also totally exempted. उस पे GST नहीं लगेगा. ठीक है. अब अपने नेक्स्ट आते हैं रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट. अब तो अपने पढ़े कि सर्विसेज गवर्नमेंट क्या क्या दे रही है. अब अपने पढ़ेंगे सर्विसेज जो गवर्नमेंट को मिला, मतलब अपने अगर गवर्नमेंट को कुछ सर्विस दिए तो देयर विल बी नो लेवी इन जीएसटी. सबसे इंपॉर्टेंट है प्योर सर्विस. इफ एनी सर्विस प्योर सर्विस मतलब देयर इज नो एलिमेंट ऑफ गुड्स इन दैट. इफ एनी प्योर सर्विस इज गिवन टू द government, if any pure service is given to the government, but for what purpose? Basically for carrying out any function related to a panchayat or for carrying out any function related to a municipality. तो अगर मैं as a person, as a pure service government को दे रहा हूँ to carry out these functions, in that situation my service will be totally exempted. But in this pure service, two types of service will not come. Number one, works contract. As you know that as per schedule 2, works contract is a service. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज सर्विस. से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. गवर्नमेंट इज वांटिंग टू कंस्ट्रक्ट रोड्स एंड बिल्डिंग्स और ब्रिजेस इन अ पर्टिकुलर एरिया विच इज इंटरेस्टेड एज पर द फंक्शन गिवन टू द म्यूनिसिपैलिटी. म्यूनिसिपैलिटी का फंक्शन है कि उसको यहाँ पे रोड्स बनाना पड़ेगा या मान लो बिल्डिंग बनाना पड़ेगा. ये काम गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी को दिया. दैट कंपनी इज एक्चुअली गिविंग अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस टू दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी या किसी को भी वो दे सकता है. ठीक है, लोकल अथॉरिटी को दिया for carrying out any panchayati function, municipality function. So this service which I am giving to local authority, that I am actually building something for them, so that's a works contract service. So this will be totally taxable. कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को एक्सक्लूड किया गया है, इट इज टोटली टैक्सेबल. बट और अदर सर्विस में अगर मैं देता तो दैट विल बी टोटली एग्जेप्ट. तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस टैक्सेबल होगा, और एनी कॉम्पोजिट सप्लाई जिसमें गुड्स भी है सर्विस भी है तो ये भी टैक्सेबल होगा. बट इसके नीचे एक दूसरा एंट्री आ गया. नो, इफ देयर इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच नॉट मोर देन 25% इज गुड्स. मतलब अगर आप 10 करोड़ का कंस्ट्रक्शन चार्ज कर रहे हैं तो 2.5 करोड़ आपका गुड्स, 2.5 करोड़ ही आपकी गुड्स के लिए है. 2.5 करोड़ ही आपके गुड्स के लिए. अगर आप 10 करोड़ का कंस्ट्रक्शन चार्ज कर रहे हैं तो आपके लिए 2.5 करोड़ ही है. अगर आप 10 करोड़ का कंस्ट्रक्शन चार्ज कर रहे हैं तो आपके लिए 2.5 करोड़ ही वैल्यू कंसिडर्ड होगा. इन दैट सिचुएशन अगर आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स 25% से ज्यादा नहीं है तो इन दैट सिचुएशन ये सप्लाई भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा. मतलब गवर्नमेंट ने ब्रीदर दे दिया, 25% से ज्यादा अगर आप नहीं करते हो तो भी अलाउड है. डिड यू अंडरस्टैंड? कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स अगर हो रहा है और सर्विस हो रहा है, 25% से ज्यादा अगर गुड्स नहीं है तो अलाउड है. वेरी इंपॉर्टेंट, इंश्योरेंस स्कीम. सर्विसेज प्रोवाइडेड to central government under any insurance scheme for which total premium is paid by the government. मतलब सोचो अगर गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले रही है, प्रीमियम पे कर रही है, तो इंश्योरेंस पॉलिसीज जब खरीद रही है तो प्रीमियम पे जीएसटी लगाया जाएगा. तो इन दैट सिचुएशन अगर टोटल प्रीमियम गवर्नमेंट ही पे कर रहा है तो दैट सप्लाई इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी. वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें अमेंडमेंट आया था. If same training program services has been given to the government, but government has
बोन मतलब लायबल टू पे 75% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर बोन बाय द गवर्नमेंट। मतलब 100 रुपीज का खर्चा है, मैंने 100 रुपीज का खर्चा का सप्लाई किया, बट उसमें 75% गवर्नमेंट पे कर रहा है, तो दैट सप्लाई इज टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। पहले ये 100% था, बट इसको 75% कर दिया गया है। फेयर प्राइस शॉप्स आपको पता है, राशन शॉप्स अगर सप्लाई कर रहे हैं सेल ऑफ फूड ग्रेन्स एंड वो कमीशन चार्ज करते हैं गवर्नमेंट से, दैट कमीशन इज टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। जीएसटी एंड यू नो दैट इज जीएसटी का कॉमन पोर्टल। Goods and Service Tax Network is a Section 8 company incorporated under Companies Act 2013. Whatever services they are giving to the central government and they're getting the consideration for maintaining the GST website, that is totally exempted from GST. Okay. Then comes passenger transportation services. Air के through अगर passenger transportation service दिया जा रहा है तो you know, or the रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट्स या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एयरपोर्ट्स में अगर एयरपोर्ट में अगर ऑरिजिन हुआ या डिपार्ट हुआ, लाइक अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और बागडोगरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, अगर यहाँ पे ऑरिजिन है, एम्बार्किंग है या टर्मिनेटिंग है, तो दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, वेरी इंपॉर्टेंट, एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होगा तो टैक्सेबल है, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होगा एंड इट शुड बी ऑल्सो एक्सक्लूडिंग टूरिज्म। अगर टूरिस्ट पर्पज के लिए नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, दैट इज टोटली टैक्सेबल। स्टेज कैरेज है जहां पे बहुत सारे पैसेंजर्स एट मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ जर्नी स्टार्ट एंड एंड करते हैं, दैट सिचुएशन इट विल बी एग्जेम्प्ट, बट इफ इट इज एसी कैरेज इट इज टोटली टैक्सेबल। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट यही आई थी सर कि ये जो हम बात कर रहे हैं स्टेज कैरेजेस का या कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस का, इफ यू रिमेंबर ओला उबेर, if you remember Ola Uber, that sir section 9 subsection 5 talks about liability to pay GST on the e-commerce operators if transportation of passengers की service by radio taxi, maxi cabs, omnibus or any other motor vehicle, if this has been done through e-commerce operator, then e-commerce operator will be liable to pay GST। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आया कि सर मेरा बात ध्यान से सुनना, नॉन एसी कैरेज एग्जेम्प्ट है, बट वही नॉन एसी कैरेज अगर ओला के थ्रू सर्विस दे रहे हैं ना तो टैक्सेबल है। नॉन एसी कैरेज अगर ओला उबेर के थ्रू सर्विस दे रहा है तो टैक्सेबल है, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहां पे डाल दिया कि दिस एग्जेम्पशन विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ इट इज अ सर्विस सप्लाइड थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर ये इको के थ्रू सप्लाई किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन, अगर ये इको के थ्रू सप्लाई किया गया है तो ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा, ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा अगर इको के थ्रू सप्लाई किया गया, देन इट विल बिकम टैक्सेबल। Then regional connectivity scheme, you know that if private airline, if they want funding, obviously in order to operate in a low cost airport where fees will be very low, so they will want gap funding, they will want some funding from the government in order to operate at a low cost airport, जिसको अपने बोलते हैं रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट। जैसे आप सुन रहे हो स्मॉल स्मॉल टाउन्स में भी एयरपोर्ट आ रहा है। अब जैसे क्या वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता है, बट कोलकाता के बाहर भी वेस्ट बंगाल के अंदर भी स्मॉल स्मॉल टाउन्स में दे आर ब्रिंगिंग एयरपोर्ट्स, सो दैट कनेक्टिविटी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रहेगा, कहीं से भी कहीं किसी को भी जाना पड़ सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इज वर्किंग हेवीली ऑन दिस एंड दैट इज व्हाई दे हैव गिवन एग्जेम्पशन फॉर दिस पर्टिकुलर सर्विस, दैट इफ आई एम एक्चुअली गिविंग अ सर्विस टू द गवर्नमेंट, आई एम अ प्राइवेट एयरलाइन ऑपरेटर, आई एम अ ट्रांसपोर्टेशन एंड मैं सर्विस दे रहा हूँ गवर्नमेंट को, जहाँ पे मैं ओरिजिन या डिपार्ट कर रहा हूँ किसी भी आरसीएस एयरपोर्ट में, आरसीएस हो गया रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम नोटिफाइड एयरपोर्ट, एंड मुझे 3 इयर्स तक इसका एग्जेम्पशन मिलेगा, मुझे 3 इयर्स तक इसका एग्जेम्पशन मिलेगा। वॉट एवर चार्जेस विच आई एम टेकिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, रिपीट कर रहा हूँ, whatever charges which I'm taking from government, that will be totally exempted in GST. And what charges I'm taking? The funding. I'm taking the difference in the cost which I am actually suffering because of operating in the low connectivity airports. ठीक है, रेलवेज इज वेरी सिंपल गाइज, रेलवेज में कोई भी एसी कोच होगा या फर्स्ट क्लास होगा दैट विल बी टैक्सेबल, एल्स ऑल रेलवेज का सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रेलवेज इज एग्जेम्प्ट। मेट्रो हो गया, मोनोरेल, ट्रामवे, इनलैंड वाटरवेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर टूरिज्म पर्पस के लिए प्रेडोमिनेंटली यूज हुआ है तो दैट इज एग्जेम्प्ट, सॉरी हाँ दैट इज एग्जेम्प्ट, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर प्रेडोमिनेंटली टूरिज्म पर्पस के लिए हो रहा है तो टैक्सेबल है, अदर देन टूरिज्म पर्पस के लिए हो रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है। मीटर्ड कैब्स हुआ, ऑटो रिक्शाज हुआ, अगेन मीटर्ड कैब्स के लिए यू नो ऑल दिस, जो ऑटो रिक्शाज है जैसे ओला ऑटो है, उबर मोटो है, इतने सारे अलग अलग आप देखो ऐप्स आ गए हैं जहाँ पे आप इवन रिक्शाज एंड ऑल भी ऐप के थ्रू कर सकते हो। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, अगर आप ऑटो रिक्शाज का डायरेक्ट सप्लाई एग्जेम्प्ट है, बट यही अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दिया जाएगा तो दिस विल बी टोटली टैक्सेबल, दिस विल बी टोटली टैक्सेबल। ठीक है सर, तो ये था अपना नेक्स्ट सर्विस। अब आते हैं अपने गुड्स में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, वेरी सिंपल, इफ इट ट्रांसपोर्टेशन इज डन बाय रोड, अगर रोड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो दैट इज टोटली एग्जेम्प्ट, बट जीटीए की सर्विसेज टैक्सेबल एंड कोरियर एजेंसी की सर्विसेज फुली टैक्सेबल। इनलैंड वाटरवेज पैसेंजर के लिए भी एग्जेम्प्ट था और गुड्स के लिए भी एग्जेम्प्ट है। एयरक्राफ्ट
वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया के बाहर से अभी अगर आप इंडिया में गुड्स लेकर आ रहे हो थ्रू एन एयरक्राफ्ट, आप इंडिया से इंडिया के अंदर गुड इंडिया के बाहर से इंडिया में गुड्स लेकर आ रहे हो, तो सर डेफिनेटली दिस विल आल्सो बी एग्जेम्प्टेड इन जीएसटी। ये मैं खाली एयरक्राफ्ट के लिए बोल रहा हूँ, वेसल के लिए दिस इज फुली टैक्सेबल। अगर आपको याद होगा 5 सबसेक्शन 3 में अपने पढ़े थे आईजीएसटी रिवर्स चार्ज, 5 सबसेक्शन 3 में अपने पढ़े थे, यहाँ पे आईजीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लग जाता है। उल्टा सोचिए, if you are exporting goods from India to outside India, you will definitely want the services of aircraft or vessel. So ये जो सर्विस है that is totally exempted up to 30th September 2022, और इसको बार बार गवर्नमेंट एक्सटेंड ही किए जा रहा है, 6 मंथ्स 1 ईयर ये एक्सटेंड होता रहता है, अभी तक ये एग्जेम्प्ट ही है। यानी इफ यू आर ट्रांसपोर्टिंग योर गुड्स फ्रॉम अ वेसल और एयरक्राफ्ट फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, इट इज एग्जेम्प्ट। ठीक है सर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जीटीए अगर सर्विस दे रहा है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन वाला सर्विस, जीटी अगर सर्विस दे रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाला सर्विस, किसको दे रहा है? खुद किसी भी सेंट्रल डिपार्टमेंट को दे रहा है, एस्टैब्लिशमेंट को दे रहा है, लोकल अथॉरिटी को दे रहा है, गवर्नमेंट एजेंसी को दे रहा है, लेकिन उन्हीं को दे रहा है फॉर विच दे हैव टेकन रजिस्ट्रेशन। कुछ याद आ रहा है बेटा? सेक्शन 24 टीडीएस, इफ आई एम लायबल टू डिडक्ट टीडीएस आई हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन, एंड ये सारे लोग है बेटा जो टीडीएस का रजिस्ट्रेशन लेते हैं। तो आज ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना, जीटीए प्लीज ध्यान से सुनना, जीटीए सप्लाइंग सर्विस टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, 9 सबसेक्शन 3 लग जाता है? हाँ सर लग जाता है। सेक्शन 24 लग जाएगा क्योंकि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की प्रोविजन आ जाएगा, यस। और इंपॉर्टेंटली टीडीएस काटना पड़ेगा, सेक्शन तब भी 24 लग जाएगा, 24 लगते ही रजिस्टर्ड हो जाएगा, सेक्शन 24 लगते ही रजिस्टर्ड हो जाएगा। अगर जीटीए गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिशमेंट को सर्विस दे रहा है, तो सेक्शन 24 लगेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि टीडीएस है। यहीं पे जीटीए सर्विस को एग्जेम्प्ट किया गया है कि अगर आप एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी को सर्विस दे रहे हो जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टैक्स एंड नॉट फॉर मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो दिस विल बी टोटली एग्जेम्प्ट सर्विस। ये जीटीए का एग्जाम सर्विस माना जाएगा। मतलब सर ये जो टीडीएस काट रहे हैं ये कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे हैं, अगर ये टैक्सेबल सप्लाई करेंगे तो टैक्सेबल हो जाएंगे, ये सर्विस टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर ये खाली टीडीएस काटने के वजह से रजिस्ट्रेशन लेके रखें तो दिस सर्विस सप्लाइड बाय जीटीए इवन टू दिस रजिस्टर्ड पर्सन विल नॉट बी टैक्सेबल, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आपको कनेक्शन समझना पड़ेगा। तो जो रेसिपिएंट है, that recipient should take registration only for the purpose of 51 and not making a taxable supply. If that is so the case, then this GTA service is totally exempted. Next आओ बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अब बात करेंगे रेल के थ्रू, वेसल के थ्रू या जीटीए के थ्रू। कॉमन पॉइंट्स है, रेल वेसल के थ्रू आप ट्रांसपोर्टेशन करो या आप जीटीए किसी गुड्स कैरेज में सर्विस प्रोवाइड करेगा। कौन कौन से गुड्स का? रिलीफ मटेरियल्स का, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स का, न्यूज़पेपर मैगजीन्स का, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग फ्लोर्स, पल्सेस, राइस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर का। और रेलवेज है तो रेलवे इक्विपमेंट्स भी अगर वो ट्रांसपोर्टेशन करेगा तो एग्जम्प्ट किया जाएगा। बट जीटीए के केस में एडिशनल सप्लाईज क्या है सर? 1500 रुपीज per consignment. If I'm transporting any goods for you and the single consignment freight does not exceed 1500, in that situation this will be totally exempted from GST. और अगर single consignee your value does not exceed 750 rupees तो भी GST में क्या हो जाएगा? exempt हो जाएगा सर। ठीक है। Then comes last point, supply of service to unregistered person. Last point क्या आ जाता है? supply of service to unregistered person. जब GTA अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है ना, अदर देन 93, बी केयरफुल, अदर देन 93, बिकॉज वी हैव रेड दैट जीटीए अगर 7 स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स को सप्लाई करेगा तो वहां पे 93 लग जाएगा, और अगर 93 लग जाएगा तो सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। दैट इज वाई अदर देन 93 में अगर जीटीए किसी को भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है तो दैट सर्विस इज टोटली एग्जेम्प्टेड। मतलब क्लियर कट आइडिया है, अगर वो 7 स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स को छोड़कर अगर किसी सर्विस ये सप्लाई जीटीए को दिया जा रहा है तो वो एग्जेम्प्ट ही हो जाता है, उसमें टैक्सेबिलिटी की बात ही नहीं की जाएगी, उसमें टैक्सेबिलिटी की बात ही नहीं की जाएगी, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर वो अदर देन 7 स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स होगा। क्लियर है गाइस? ये रेलिवेंट नहीं है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड एंटिटीज, अलग अलग बॉडीज है, सेबी है, ईएसआईसी है, आईआरडीआई है, ठीक है, पीएफ है, सेबी है, इन सब के सर्विसेज टोटली एग्जेम्प्ट होते हैं।
इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर सर्विस। हेल्थ केयर मतलब क्या होता है? हेल्थ केयर सर्विसेज बेसिकली सर्विस प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट हॉस्पिटल हो गया, नर्सिंग होम हो गया, क्लिनिक्स हो गया, या डॉक्टर्स हो गए, पैरामेडिक्स हो गए, नर्सिंग स्टाफ हो गए, ये जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे हेल्थ केयर सर्विसेज का, दैट इज टोटली टैक्स एग्जेम्प्ट। हेल्थ केयर सर्विसेज का डेफिनेशन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्नोसिस करना, ट्रीटमेंट करना, केयर करना फॉर व्हाट? इलनेस, इंजरी, any deformity, any abnormality, any pregnancy in any recognized system of medicine, जो इंडिया में recognized है, जैसे एलोपैथी, योगा, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, ये सब recognized system of medicine है, ठीक है। अब जैसे रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, ये सब रिकॉग्नाइज नहीं है इंडिया में, तो इसके रिलेटेड जो भी अगर सर्विसेज दी जाएगी ये टैक्सेबल कर दी जाएगी। Obviously, healthcare services also includes ambulance services, transportation of patient to and from clinical establishment, but it does not include beauty treatment like hair transplant, cosmetic, plastic surgery, except where it is undertaken to restore or to reconstruct any anatomy or functions of the body affected due to congenital defects or development abnormalities, injury or trauma। मतलब अगर आपका कोई internal organ में failure है, बच्चों का जन्म पर हो सकता है बच्चे abnormal पैदा हुए, बच्चों का कुछ सर्जरी करना पड़ा, ऑल्दो बाहर से किया या अंदर से किया, बिकॉज इट इज बेसिकली डेवलपमेंटल अबनॉर्मलिटी, इंजरी हो गया, कुछ ट्रॉमा है, कोई डिफेक्ट है, जेनिटल इफेक्ट है, जिसके वजह से उनको कोई एक्स्ट्रा सर्जरी करनी पड़ी, वो भी हेल्थ केयर सर्विस माना जाएगा। जनरली जैसे प्री मेच्योर बेबी होता है, तो प्री मेच्योर बेबी होने के बाद भी उनके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है सो दैट दे कैन बी हेल्दी। 2 मंथ्स अगर वो इमेच्योर है तो डेफिनेटली उनको अलग से इंटेंसिव केयर यूनिट में यू नो रखना पड़ता है सो दैट दे कैन बी हेल्दी आफ्टर 2 मंथ्स। सो दीज ऑल आर ऑल्सो पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। तो हेल्थ केयर सर्विसेज का डेफिनेशन है, ये अगर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट देता है तो इट इज टोटली एग्जेम्प्ट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एम्बुलेंस, वेटरनरी क्लिनिक हो गया, एनिमल्स बर्ड्स का क्लिनिक जहाँ पे उनको सर्विसेज दिया जाता है, एनिमल बर्ड्स का क्लिनिक, दैट इज टोटली एग्जेम्प्ट। कॉर्ड ब्लड बैंक्स इन प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स और एनी अदर सर्विस, जहाँ पे स्टोरेज होता है ब्लड बैंक्स का, तो अगर वो आपसे आप उनको मतलब वो आपको सर्विस दे रहे हैं डेफिनेटली बाय गिविंग द ब्लड्स, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, मेनी एक्सटर्नल ऑपरेटर्स दे डेफिनेटली गिव वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी। हॉस्पिटल का जितना भी कूड़ा कचरा होता है वो सारा का सारा प्रॉपरली ट्रीट किया जाता है एंड प्रोसेस किया जाता है। तो जो भी कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो हॉस्पिटल को सर्विस दे रहे हैं, कौन सा हॉस्पिटल को? क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट को सर्विस दे रहे हैं, दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड इन जीएसटी, ठीक है सर। नेक्स्ट अपने आते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर, कुछ एक बेसिक सर्कुलर है, कुछ ज़्यादा खास नहीं बेटा। कंसल्टेंसी चार्जेस पेड बाय हॉस्पिटल्स टू सीनियर डॉक्टर्स। अब बहुत सारे डॉक्टर्स क्या होते हैं, वो हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल के थ्रू पेशेंट को सर्विस देते हैं। पेशेंट किसको पे करता है? डॉक्टर्स को पे नहीं करता, पेशेंट हॉस्पिटल को पे करता है। हॉस्पिटल इनडायरेक्टली डायरेक्टली पेमेंट करता है डॉक्टर्स को। तो बेसिकली पेशेंट इज नॉट डायरेक्टली पेइंग टू द डॉक्टर्स, इंस्टेड दे आर पेइंग टू हॉस्पिटल वो फर्दर पेमेंट डॉक्टर्स को करता है। नाउ द पॉइंट इज द कंसल्टेंसी चार्जेस विच इज पेड बाय द हॉस्पिटल द डॉक्टर्स, क्या ये जीएसटी में एग्जेम्प्ट होगा कि टैक्सेबल होगा? ऑफ कोर्स इट विल बी एग्जेम्प्ट, बिकॉज अल्टीमेटली द डॉक्टर्स आर गेटिंग पेमेंट्स बिकॉज ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द डॉक्टर्स, ठीक है। हेल्थ केयर सर्विसेज की वजह से ही डॉक्टर्स को पेमेंट मिल रहा है, चाहे वो पेशेंट से रिसीव करे, फिर चाहे वो हॉस्पिटल से रिसीव करे, ठीक है। दूसरा, ऑब्वियसली रिटेंशन मनी, ऑब्वियसली जो डॉक्टर्स पेशेंट को पेशेंट जो हॉस्पिटल को पेमेंट करता है, मान लो 1000 रुपीज इज द फीस, उसमें 750 डॉक्टर को गया, 250 हॉस्पिटल रखा, तो ये भी एग्जेम्प्ट होगा, ये भी एग्जेम्प्ट होगा, बिकॉज हॉस्पिटल भी अल्टीमेटली जो प्रोवाइड कर रहा है दैट इज अ हेल्थ केयर सर्विस, लाइक नर्सिंग हो गया, केयर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ब्लड प्रेशर चेकिंग, योर टेम्परेचर चेकिंग, योर वेट चेकिंग, बेसिक जो चेकिंग करता है वो हॉस्पिटल को पेमेंट जाता है उसका। तो हॉस्पिटल जो सर्विस दे रहा है इसके लिए रिटेंशन मनी का वो भी एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट, पेशेंट को एडमिट करने के बाद जो फूड सप्लाई किया जाता है पेशेंट को, दैट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई वेयर द प्रिंसिपल सप्लाई इज अ हेल्थ केयर सर्विस एंड दैट इज व्हाई इट इज टोटली एग्जेम्प्टेड इन जीएसटी। इसमें जीएसटी का आपका एग्जेम्पशन हो जाएगा, टैक्सेबल पूरा का पूरा हो जाएगा, आई मीन जीएसटी इज फुली एग्जेम्प्टेड इन दिस केस। फूड सप्लाई टू द पेशेंट्स बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द कैंटीन्स रन बाय द हॉस्पिटल्स में बी आउटसोर्स बाय द हॉस्पिटल। तो सर अगर फूड ओन कैंटीन्स पेशेंट को दे रहा है, डॉक्टर्स को दे रहा है, इट विल बी फुली एग्जेम्प्टेड इन जीएसटी। लेकिन अगर वो किसी बाहर वाले को दे रहा है, अटेंडेंट को दे रहा है, पेशेंट के अटेंडेंट को दे रहा है, तो दैट इज टोटली टैक्सेबल, उसमें जीएसटी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ये सीबीएसई का सर्कुलर था।
ठीक है सर। नेक्स्ट आता है लीगल सर्विसेज, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनना। लीगल सर्विसेज में बहुत सारे एग्जेम्पशन है, तीन तीन तरह के पार्ट्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे पहला आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी भी नॉन बिजनेस एंटिटी को अगर सर्विस देगा, क्योंकि गाइस सिंपल सा बात है, यहाँ पे भी आपको आरसीएम याद करना पड़ेगा। लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ बिजनेस एंटिटी में आरसीएम था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को अगर सर्विस दिया जा रहा है तो दिस इज टोटली एग्जेम्प्टेड। या वो बिजनेस एंटिटी जिसका लास्ट ईयर टर्नओवर 10 लाख 20 लाख 10 तो होगा नहीं, 20 या 40 होगा। 40 भी नहीं होगा क्योंकि सर्विस है, 20 होगा ये। तो सर अगर आपका 10 लाख या 20 लाख से कम का लिमिट था बिजनेस एंटिटी का पिछले साल, तो ये जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की सर्विस है बिजनेस एंटिटी को, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इस पे आरसीएम भी नहीं लगेगा। गवर्नमेंट को भी इसमें कवर कर लिया गया कि अगर ये सर्विसेज गवर्नमेंट भी ले रहा है तो तभी ये टोटली exempted रहेगा। नाउ बी केयरफुल इन दिस। इंडिविजुअल एडवोकेट, पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स, ये दो अगर किसी दूसरे एडवोकेट को सर्विस दे रहे हैं तो भी एग्जेम्प्ट है। अदर देन बिजनेस एंटिटी, नॉन बिजनेस एंटिटी को दे रहे तो भी एग्जेम्प्ट है। स्मॉल बिजनेस एंटिटी को भी दे रहे तो भी एग्जेम्प्ट है। स्मॉल बिजनेस एंटिटी मतलब जिनका टर्नओवर लास्ट ईयर 10-20 से कम है, गवर्नमेंट को दे रहे तो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर यहाँ पे सीनियर को एक्सक्लूड किया गया, अगर सीनियर एडवोकेट बेटा किसी एडवोकेट को सर्विस देगा ना तो वो टैक्सेबल होगा और वो आरसीए में टैक्सेबल होगा। ध्यान से बात सुन लेना मेरा, क्योंकि यहाँ पे अदर देन सीनियर एडवोकेट है, और सीनियर एडवोकेट में क्या बोला, अगर नॉन बिजनेस एंटिटी है तो फुली एग्जेम्प्ट। हाँ, अगर ये एडवोकेट का टर्नओवर लास्ट ईयर 20 लाख से कम है तो ये यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर सीनियर एडवोकेट एक ऐसे बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है जिसका लास्ट ईयर टर्नओवर 20 लाख से कम था या 10 लाख से कम था, तो दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड, और गवर्नमेंट को दे रहा है तो भी एग्जेम्प्ट है। तो सीनियर एडवोकेट का पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से समझ के पढ़ना, ठीक है सर। एजुकेशनल सर्विसेज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सर एजुकेशनल सर्विसेज कुछ तो सर्विस प्रोवाइड कर रही है और कुछ एजुकेशनल सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा रहा है, इनवर्ड आउटवर्ड दोनों में। एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड to students, faculty, staff totally exempted. Educational institution providing services to स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ नहीं है, बट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो सबके लिए ओपन फॉर ऑल है, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो सर्विसेज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कंडक्ट करेगा वो भी एग्जेम्प्ट है। तो ये जो आउटवर्ड सप्लाई है, जो दो हम बात करेंगे टोटली एग्जेम्प्टेड। अब हम बात करेंगे टीसीएस-ए का। टीसीएस-ए क्या है? टीसीएस-ए है तुम्हारा इनवर्ड सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ, एक्सटर्नल पार्टी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड कर रहा है। केटरिंग का सर्विस, सिक्योरिटी क्लीनिंग का सर्विस, हाउसकीपिंग सर्विस, एंड लास्ट में एडमिशन और एग्जामिनेशन का सर्विस। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ, केटरिंग सर्विस, सिक्योरिटी क्लीनिंग, हाउसकीपिंग एंड एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन का सर्विस। तो अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये सारे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आई मीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन गाइस थोड़ा ध्यान से अपने को समझना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का टीसीएस से अपने पढ़े ट्रांसपोर्टेशन, सी फॉर केटरिंग, एस फॉर सिक्योरिटी क्लीनिंग हाउसकीपिंग, ए फॉर एडमिशन कंडक्ट, एंड लास्ट ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स। ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स हो गया जो स्टूडेंट जर्नल एंड ऑल इंस्टीट्यूट्स अपने को प्रोवाइड करता है। तो टीसीएसए ये सब 5 सर्विसेज जो है ये इनवर्ट सप्लाई है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, और ये एग्जेम्प्ट है। अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का 3 क्लॉजेज है, प्री स्कूल एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल, education as a part of curriculum for obtaining a recognized qualification under any law, suppose ICI, ICSI, ICMA, ये सब इनका पार्ट हो जाता है, और वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। अब इन गवर्नमेंट ने क्या किया है, ट्रांसपोर्टेशन वाला सर्विस, केटरिंग वाला सर्विस, हाउसकीपिंग वाला सर्विस, ये तीनों के तीनों सर्विस केवल और केवल प्री स्कूल वालों के लिए एग्जेम्प्ट किया है। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर प्री स्कूल। एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन वाला जो सर्विस है, एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन वाला जो सर्विस है वो सबके लिए एग्जेम्प्ट है। मतलब मान लो मैं एडमिशन सर्विस किसी को आउटसोर्स कर दिया कि तुम मुझे सर्विस दो, एग्जामिनेशन वाला सर्विस तुम मुझे दो, तो ये सप्लाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए तीनों के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स वाला सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पर ऑनलाइन एजुकेशन वाला सर्विस खाली क्लॉज बी वालों के लिए एप्लीकेबल होगा। क्लॉज बी कौन हो गए? जो इंस्टीट्यूट है, आईसीआई, आईसीएमआई, आईसीएसआई, वहां पे प्री स्कूल एजुकेशन, एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी कवर नहीं किया जाएगा सर। ठीक है गाइज, नॉट पॉसिबल टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, बट मैं उतना बिल्कुल कवर करा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए एकदम रेलिवेंट है। समझो 95% से ज्यादा कवरेज एकदम रेलिवेंट हो जाएगा। बाद बाकी जो जैसे आईएएम सब, ये सब आपको पता है, आईएएम को भी इंस्टीट्यूट ने क्या मान लिया, आई मीन लॉ में क्या मान लिया कि आईएएम भी एक तरह का डिग्री कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, विच इज फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय अंडर एनी लॉ। लेकिन
आज अगर IIM कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म मतलब 4 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, दैट इज नॉट अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एंड दैट इज टोटली टैक्सेबल. लेकिन मान लो 5 ईयर प्रोग्राम, 2 ईयर प्रोग्राम, ये सब जो MBA कोर्सेज है दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड इन GST. ये सब CBIC के सर्कुलर के थ्रू आया. सिमिलरली नेशनल बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, ये जो भी स्टेट बोर्ड्स का एग्जामिनेशन होता है, इसके लिए जो भी सर्विसेज स्टेट बोर्ड्स देता है, ये सब कवर होगा अंडर अ रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन अंडर एनी लॉ. तो दे आर टोटली एग्जेम्प्टेड इन GST. ये इस पे GST नहीं लगेगा. आपको बस क्रक्स पढ़ना है कि इस पे GST नहीं लगेगा, इस पे GST लगेगा. बस आपको क्रक्स समझ में आना चाहिए सर. ठीक है सर. आंगनवाड़ी, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST इन सप्लाई ऑफ फूड. फूड क्या हो गया? केटरिंग. कहां पर? आंगनवाड़ीज एंड स्कूल्स. वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जो आंगनवाड़ीज है बेसिकली गाइस रूरल एरियाज में जो छोटे छोटे विद्यार्थी होते हैं जो ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए विलेज में छोटे छोटे स्कूल्स बनाए जाते हैं जहां पर जो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, ये फूड का जो सर्विस किया जा रहा है. अब ये जो है जो केटरिंग की सर्विस है इन स्कूल्स में दी जा रही है, तो गवर्नमेंट बोलता है कि यार ये जो आंगनवाड़ीज है ना, इसको भी आप मानो कि ये भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है. और जो भी फूड का सर्विस आंगनवाड़ीज को दिया जा रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दिया जा रहा है, दैट विल बी टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST. चाहे वो आंगनवाड़ीज स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST. क्लियर है गाइस? स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज एकदम भी रेलिवेंट नहीं है. ये एकदम इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स सर्विस. अब स्पोर्ट्स में आप समझो, स्पोर्ट्स में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, नॉट ओनली प्लेयर्स, बहुत सारे लोगों का रोल होता है किसी स्पोर्ट्स में. स्पोर्ट्स में याद रखना कि आप स्पोर्ट्स का सर्विस किसको दे रहे हो. यू आर नॉट गिविंग टू एनी प्राइवेट पीपल, यू आर गिविंग टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी. If I am a player, if I am a referee, if I am an umpire, coach, team manager, or a director, and I'm participating in a sporting event which is organized by the recognized sporting body, and I am obviously giving service to them, so I am not liable to pay any GST. मेरी सप्लाई क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी. बट यहाँ पे सेलेक्टर्स इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे कमेंटेटर्स इंक्लूडेड नहीं है. तो कमेंटेटर्स और सेलेक्टर्स का जो सर्विस है वो टैक्सेबल होगा एज पर द नोटिफिकेशन. या फिर आई एम अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी एंड आई एम सप्लाइंग अ सर्विस टू अनदर रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, व्हेन दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड इन GST. रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी बेसिकली गाइस जो इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है फॉर एवरी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, लाइक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, हर स्पोर्ट्स का एक फेडरेशन होता है. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स फेडरेशन को रिकॉग्नाइज कर लेता है, वो दैट इज टोटली बेसिकली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST. अब जैसे ये मत सोचना कि जो IPL मैचेस होता है, जो लीग मैचेस होता है, ये कोई भी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी वाला मैचेस नहीं है. तो यहाँ पर आपका जो भी सप्लाई होगा दैट इज टोटली टैक्सेबल बिकॉज इट इज नॉट प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी. जैसे ये जो KKR है, ये जो चेन्नई के टीम से जो टीम्स होते हैं ना IPL, ये कोई भी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. हाँ, BCCI है, तो ये लोग सब जो है आपका सप्लाई जो है अकॉर्डिंगली आपको चेक करना पड़ेगा. आर्टिस्ट परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा बार अगर एग्जाम में टेस्ट हुआ है तो इस पर्टिकुलर प्रोविजन से टेस्ट हुआ है. आर्टिस्ट परफॉर्मेंस, एक पढ़े थे कोचिंग, ये परफॉर्मेंस है, क्या परफॉर्म कर रहे हो, फोक या क्लासिकल फॉर्म, MDT, म्यूजिक डांस थिएटर. एग्जेम्प्ट होगा इफ द कंसिडरेशन इज नॉट एक्सीडिंग 150. अगर कंसिडरेशन 1,50,000 क्रॉस कर गया तो फुली टैक्सेबल. और एज अ ब्रांड एम्बेसडर अगर आपने सर्विस दिया, अमिताभ बच्चन जी जस्ट डायल का ठक 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 ठक, ठीक है, करके कर रहे हैं, भले फोक क्लासिकल आर्ट डांस करके कर रहे हैं, तो दैट इज टोटली टैक्सेबल इन GST बिकॉज दैट इज अ ब्रांड एम्बेसडर. विराट कोहली मान्यवर का ऐड कर रहा है, दैट इज टोटली टैक्सेबल बिकॉज दैट इज अ ब्रांड एम्बेसडर. अरे बोलो क्लियर है क्या? MDT बोला है, म्यूजिक बोला है, डांस बोला है, थिएटर बोला है, स्टिल फॉर्म नहीं बोला है. स्टिल फॉर्म में अगर आपने किसी का भी परफॉर्मेंस, स्टिल फॉर्म में परफॉर्मेंस भी किया होगा, परफॉर्मेंस इसी 3 में होगा. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. न्यूज सर्विस, अगर एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, क्या होता है आपको याद होगा बजरंगी भाईजान में, बजरंगी भाईजान में जो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट था, ठीक है, वो जो न्यूज प्रोवाइड करता था सबको अलग अलग न्यूज एजेंसी को फोन कर करके, दैट इज नॉट टैक्सेबल, दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड. अगर एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट न्यूज प्रोवाइड कर रहा है तो दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड. होटल सर्विस सर सिंपल है. होटल में अगर आप रेसिडेंशियल अकोमोडेटिंग लॉजिंग ले रहे हो वेयर द वैल्यू सप्लाई इज 1000 और बिलो और इक्वल टू 1000 पर डे, ठीक है. वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब जो एक्चुअल वैल्यू आपने चार्ज किया है, अगर वो 1000 और उससे कम है पर डे पर रूम, दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST. एक बार मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट बेटा दे देता हूँ. 18 जुलाई 2022 से बहुत सारे चेंजेस आ गए थे एग्जामिशन वाले चैप्टर में. ये बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है दिसंबर 22 एग्जाम्स के लिए या जनवरी 23 एग्जाम के लिए, बट जो बच्चे जून 23 में एग्जाम देंगे उनके लिए रेलिवेंट होगा, ठीक है. तो जून 23 का जब अमेंडमेंट क्लास में लूंगा उसमें मैं वो अलग से कवर करा दूंगा,
ठीक है। 18 जुलाई 2022 को बहुत सारे चेंजेस आए थे एग्जामेशन चैप्टर में। जैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये सर्विस का डिलीशन हो चुका है, अब ये एग्जाम नहीं है, बट दिस इज फ्रॉम 18 जुलाई, तो दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर Jan 23 एग्जामिनेशन बट नॉट फॉर जून 23 एग्जामिनेशन, ठीक है। तो हो सकता है आपको कहीं दिखे तो आप अपना टर्म के हिसाब से ही पढ़ना, ठीक है सर। सर हमें ये अमेंडमेंट्स आप बाद में पढ़ाओगे, ऑब्वियसली जून 23 एग्जाम के पहले आपको ये अलग से अमेंडमेंट बताया जाएगा। हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर। अगर मैं आपको मोटर व्हीकल अपना हायर पे दे रहा हूं बेटा, तो वहां पे स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, किसको हायर पे दे रहा हूं उस पे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं किसी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को, जो स्टेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स या गुड्स का बिजनेस कर रहा है, तो वहां पे उनको अगर मैं मोटर व्हीकल हायर पे दे रहा हूं जो 12 पैसेंजर से ज्यादा गुड्स आई मीन उसको यूज कर रहे हैं उसके लिए, तो दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड। जीटीए को अगर ये दिया जा रहा है, दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, काकू का एग्जांपल आपको याद होगा सर, अपने जब स्कूल जाते थे तो काकू अपने को स्कूल लेके जाते थे, राइट। अब काकू का जो बस है, काकू ये बस किसी से हायर पे अगर लेते हैं, तो वो जो बस हायर पे लेंगे, वो जो सर्विस है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि काकू हम बच्चों को वो स्कूल लेकर जा रहे हैं, तो ये जो सप्लाई है ये एग्जेम्प्ट है। तो काकू जिनसे ये हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल का सर्विस लिए, ये सप्लाई भी एग्जेम्प्ट होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि अल्टीमेटली ये सर्विस क्यों लिया गया। द हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल इज गिविंग सर्विस, द हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाला सर्विस इज गिवन टू अ पर्सन who is actually providing service of transportation of students, faculty, staff, and he is nothing but a प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी। वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो अल्टीमेटली ये स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ को एक एजुकेशन, मतलब ये स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ का ये जो सर्विस दे रहा है, ये एक ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सर्विस दे रहा है जो कि प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी है, ठीक है। नेक्स्ट, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल टू अ लोकल अथॉरिटी। एक लोकल अथॉरिटी को अगर सर्विस दिया जा रहा है एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल का hiring wala service which is meant to carry more than 12 passengers, again that is totally exempted। इंश्योरेंस सर्विस में बहुत सारे स्कीम्स है, वो आप देख लेना। इंक्यूबेटिव सर्विस रेलिवेंट नहीं है, एग्रीकल्चर सर्विस बेटा रेलिवेंट है, ठीक है। सिंपल है, यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस के बारे में लिखा गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन से सर्विसेज है जिसके बारे में गवर्नमेंट ने वो सर्विस को एग्जेम्प्ट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक सर्विसेज लाइक कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स, रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्सेस, फॉर द फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में नेसेसरी basic alteration of the characteristic has been made which is just necessary to render the produce fit for the market and to sale। आप बहुत essential characteristics चेंज नहीं कर दी जिससे नेचर बदल गया। तो ये कौन कौन से सर्विसेज है, इट इज बेसिकली एग्रीकल्चर ऑपरेशंस directly related to production of agriculture produce, farm labor supply करना, that is also exempted। all the processes like all tending, cutting, pruning, harvesting, cleaning, ये सारे जो essential processes है which does not alter the essential characteristics of agriculture produce but makes it only marketable for the primary market, that is totally exempted in GST। agricultural machinery या vacant land का rent be all obviously totally exempted है because it is related to agriculture operations। very very important, loading करना, unloading करना, packing करना, storage करना, warehousing करना किसी भी agriculture produce का। now please understand one thing, any processed spices, any processed tea is not a agriculture produce। तो इस चीज का loading, unloading, packing, storage, warehousing exempt क्या बोलते हैं नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर इंस्टीट्यूट मतलब गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले यहाँ पे अमेंडमेंट लाया था कि खाली स्टोरेज और वेयरहाउसिंग, क्या बोला मैंने, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग नहीं, खाली स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग सर्विसेज जो है फॉर सम प्रिस्क्राइब्ड गुड्स विल बी टोटली एग्जेम्प्टेड लाइक टी, कॉफी, तेंदू लीव्स, बिटर लीव्स, टोबैको, कॉटन, वेजिटेबल फाइबर्स, जैगरी, शुगर केन, स्पाइसेस, फ्रूट्स, सीरियल्स, पल्सेस, ये सब जो प्रिस्क्राइब कमोडिटीज का स्टोरेज सर्विसेज एग्जेम्प्ट होगा। पैकिंग टैक्सेबल होगा, लोडिंग टैक्सेबल होगा। Am I clear? If it is not an agricultural produce, ठीक है। फ्यूमिगेशन इन वेयरहाउस, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस लाइक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्निकल नॉलेज थ्रू फार्मर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एंड एपीएमसी, जो एपीएमसी कमिटी है जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है फार्मर से कमीशन चार्ज करके फॉर द सेल ऑफ देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, दैट सर्विस इज ऑल्सो फुल्ली एग्जेम्प्टेड, ठीक है सर। तो ये बेसिक आप ये देख लेना बेटा एग्रीकल्चर सर्विस का। मिलिंग ऑफ पैडी इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बट एक चीज याद रखिएगा, राइस के लिए अलग से एग्जेम्पशन है कि अगर हम अलग से
वेयरहाउसिंग कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं राइस का, तो दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड इन जीएसटी, ऑल्दो राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. पैडी इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. ठीक है सर. नेक्स्ट, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ. बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अगर बैंक को सर्विस दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू बेसिक सेविंग बैंक, बीएसबीडी बोलते हैं अपने उसको, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स, विच इज कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना, एंड दैट इज बेसिकली इन बैंक का रूरल एरिया, बैंक का रूरल एरिया का ब्रांच, तो दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड. ये अगर अर्बन एरिया होता तो ये क्या हो जाता, टैक्सेबल हो जाता. ओके सर. सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनी भी अपना रीच बढ़ाने के लिए बिजनेस फैसिलिटेटर्स को हायर करती है, तो बिजनेस फैसिलिटेटर्स अगर सप्लाई करता है सर्विस टू इंश्योरेंस कंपनी इन रूरल एरिया, तो दैट इज आल्सो टोटली एग्जेम्प्टेड इन जीएसटी. Next are banks and financial services. Services provided by Reserve Bank of India. Services provided by Reserve Bank of India. टू नहीं बोला, बाई बोला है, ठीक है. Services provided by Reserve Bank of India. अगर आरबीआई सर्विस प्रोवाइड करता है तो दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड, बट हम अगर आरबीआई को कैसा सर्विस प्रोवाइड करते हैं दैट इज टोटली टैक्सेबल. एनी इंटरेस्ट सर्विसेज वेयर लोन्स एंड एडवांसेस आर गिवन एंड जो कंसिडरेशन है वो इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड. बट कोई भी सर्विस फीस, कमीशन, ब्रोकरेज, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल. फॉरेन करेंसी का आपस में सेल करना विद अमंगस्ट डीलर्स और ऑथोराइज डीलर्स, दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड, बट व्हेन यू डील विद द पब्लिक दैट इज टोटली taxable. Sir, debit card credit card settlement charges up to transaction of 2000 in a particular transaction is totally exempted, right? नेक्स्ट, इंटरमीडियरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ये रेलिवेंट नहीं है. वेरी इंपॉर्टेंट, बैंक अगर बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स को सर्विस दे रहा है उसके लिए कोई चार्जेस रिकवर कर रहा है अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना, दैट इज, देखो ये अलग था, यहाँ पे बैंक अकाउंट होल्डर को सर्विस दे रहा है, ऊपर जो अपने पढ़े थे वहां पे इंटरमीडियरी आई मीन बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक को सर्विस दे रहा है, तो दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट, दिस इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट. ठीक है, यहाँ पे अकाउंट होल्डर को सर्विस आई मीन अकाउंट होल्डर को सर्विस दिया जा रहा है, वहां पे बैंक को सर्विस दिया जा रहा था, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा. ठीक है, अब इसमें गाइस एक बहुत ही जबरदस्त सिंपल सा एक सर्कुलर है. से फॉर एग्जांपल इफ यू बाय अ प्रोडक्ट, ठीक है, एंड यू बाय अ प्रोडक्ट नॉट इन कैश, यू बाइंग दैट प्रोडक्ट इन ईएमआई. आपको 40,000 का प्रोडक्ट पड़ा, ठीक है, मोबाइल फोन आपने 40,000 का खरीदा, बट आपने ईएमआई में खरीदा तो आपको 44,000 पे करना पड़ा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. तो माय क्वेश्चन इज दिस 4,000 एक्स्ट्रा विच यू आर पेइंग इज इंटरेस्ट, तो वेदर जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन दिस 4,000, द आंसर इज yes, because as per 15(2)(d if you remember, any kind of interest for delayed payment of consideration will be included in the value of supply. तो आज अगर मैं आपको 40,000 का सप्लाई कर रहा हूँ बट आपको मैंने इंटरेस्ट के साथ आपसे 44,000 चार्ज किया, तो दिस विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू सप्लाई बिकॉज दिस इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड बाय मी, दिस क्रेडिट पीरियड इज प्रोवाइडेड बाय मी, इसलिए ये इंटरेस्ट पे जीएसटी लग जाएगा. लेकिन दूसरा सोचो, मैं आज आपको 40,000 का सप्लाई कर रहा हूँ फोन, ठीक है, आई एम नॉट गिविंग यू ईएमआई, आपने क्या किया 40,000 का बोरो करके मुझे 40,000 पे कर दिया, और जिससे आपने बोरो किया वो एक थर्ड पार्टी है, आपने उसको इंटरेस्ट दिया, आपने उसको क्या दिया, इंटरेस्ट दिया. तो दीज आर द टू सेपरेट ट्रांजैक्शंस, बिकॉज यहाँ पे लोन मैंने आपको नहीं दिया, यू हैव टेकन अ लोन फ्रॉम अनदर पर्सन, आई एम नॉट ऑफर्ड यू ईएमआई इंस्टॉलमेंट्स. तो ये जो इंटरेस्ट यहाँ पे आपसे चार्ज किया गया है ये टोटली एग्जेम्प्ट होगा, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा. आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द टू काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, यही आपके एग्जाम में आने वाला है. ठीक है, तो एडिशनल penal interest is getting covered under notification and this will not be covered and subjected to GST. इस पे GST नहीं लगाया जाएगा. ये सब इसके सारे के सारे नोट्स है बेटा. कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में बस ये मिशन याद रखिएगा, हाउसिंग फॉर ऑल मिशन या प्रधानमंत्री आवास योजना, इनके अंडर में जो भी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन होगा प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स का, दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड. कोई भी सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट के ऊपर अगर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स की सर्विसेज में दी जाती है तो दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड. बट इफ दैट सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट इज अ पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, यानी कोई हाउसिंग सोसाइटी के अंदर वो बिल्डिंग यूनिट बनाया गया, देन इट इज टोटली टैक्सेबल. जो रेलिवेंट है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. लीजिंग सर्विसेज में अपफ्रंट अमाउंट दैट इज सलामी कॉस्ट विच इज पेबल फॉर ग्रांटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लीज, दैट इज पेबल फॉर ग्रांटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लीज ऑफ 30 years और मोर फॉर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और प्लॉट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द बिजनेस फाइनेंशियल बिजनेस, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, एसआईडीसी प्रोवाइड करती है, जहाँ पे या कोई एंटिटी जिसका 20% स्टेक गवर्नमेंट का है,
तो वहां पे ये अपफ्रंट अमाउंट जो पे किया जा रहा है दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड। अगेन ये बेटा बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, एक बार प्लीज पढ़ लीजिएगा। राइट ऑफ एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स, अगर आप म्यूजियम में जाते हो, पार्क्स में जाते हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, जू, फुल्ली एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर आप सर्कस, डांस, कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट, कोई भी प्लानिटेरियम में जाते हो तो 500 पर पर्सन तक का रीजनेबल एग्जेम्पशन लिमिट है, उसके बाद ये टोटली क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। यू आर बेसिकली एंटरिंग इनटू अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, ठीक है, एडमिशन टू अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, वहां पे जो एंट्री फी है वो टोटली क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन का सप्लाई। इफ दिस सप्लाई इज बीन मेड फ्रॉम अ अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी और एन नॉन प्रॉफिट एंटिटी फॉर द सप्लाइंग टू इट्स ओन मेंबर्स, क्योंकि फंडिंग इनको मेंबर से मिलता है, तो वो उनको क्या सप्लाई करते हैं, एज अ ट्रेड यूनियन अगर वो रजिस्टर्ड है तो एग्जेम्प्ट है। कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी विच इज एक्चुअली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, अगर हम उनके लिए कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं जो चीज अल्टीमेटली जीएसटी में एग्जेम्प्ट है, तो हमारा जो कलेक्शन होगा उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटेनेंस चार्जेस, हाउसिंग सोसाइटी की जो मेंटेनेंस चार्जेस होती है जो अपने मेंबर से कलेक्ट करता है, आपको याद होगा आरडब्ल्यूए, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, तो वहां पे 7500 पर मंथ पर मेंबर का लिमिट है। अगर मैं मेंटेनेंस चार्जेस 7500 पर मंथ पर मेंबर से ज्यादा कलेक्ट कर रहा हूँ, ये आरडब्ल्यूए कलेक्ट कर रहा है, तो दैट इज टोटली टैक्सेबल। अगर 7500 पर मंथ पर मेंबर तक कलेक्ट करे तो नथिंग विल बी टैक्सेबल। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा, अब इसमें और एक चीज याद रखना, इसमें और एक पॉइंट आया, ये है ट्रेड बॉडी। अभी अपने क्या बात किए थे, हाउसिंग सोसाइटी, अब एक और होता है ट्रेड बॉडी। ट्रेड बॉडी क्या होता है, से फॉर एग्जांपल आई एम इनटू केमिकल बिजनेस, तो केमिकल बिजनेस का एक ट्रेड एसोसिएशन है जिसका मैं मेंबर हूँ। कुछ भी केमिकल रिलेटेड इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो पूरा ट्रेड यूनियन बन के या ट्रेड बॉडी रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, तो आई एम अ मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेड बॉडी बिकॉज आई एम इनटू केमिकल बिजनेस। तो I have to become a member. I have to pay a membership fees for that, and I'm been getting various services from that membership which I'm holding. तो वो मेंबरशिप फीस पे जीएसटी लगेगा क्या, तो यहाँ पर बात की गई है दैट नॉन प्रॉफिट एंटिटी registered for the activities in related to the industrial और एग्रीकल्चर लेबर और फार्मर्स का वेलफेयर, इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर लेबर के लिए, फार्मर के लिए, या ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, कोई भी अदर एक्टिविटीज के लिए अगर आप मेंबर बन रहे हो जिसका मेंबरशिप फीस 1000 रुपीज पर ईयर से ज्यादा नहीं है, तो वो सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब बेसिकली मेंबरशिप फी अप टू 1000 जो है वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर अगर मेंबरशिप फी आप दे रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, दैट विल बी टोटली टैक्सेबल, ठीक है, दैट विल बी टोटली टैक्सेबल। अब इसमें एक कंफ्यूजन आया, कंफ्यूजन क्या आया, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन है, ठीक है, कि सर मुझे बताओ ये जो 7500 पर मंथ पर मेंबर है, ये हाउसिंग सोसाइटी के लिए, ये क्या वो इंडिविजुअल फ्लैट ओनर के ऊपर एप्लीकेबल होगा कि ये फ्लैट वाइज एप्लीकेबल होगा? मतलब सोचो एक पर्सन, एक फैमिली के पास, एक पर्सन के पास दो फ्लैट है, तो 7500 वो एक फ्लैट का देगा, पर फ्लैट वाइज देखेंगे कि पर ओनर वाइज देखेंगे? डिड यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो यहाँ पे गवर्नमेंट एकदम क्लियरली बोल दिया भाई, यहाँ पे आपको पर फ्लैट वाइज देखना है, you don't have to see per owner wise, that is 7500 is for per flat, per complex, I mean per unit. So this have to be applied for each apartment owned by him, for each flat owned by him. दूसरा ये जो 7500 वाला बात है कि हम 7500 के अबव जाएंगे तो एक्सेस टैक्सेबल होगा कि फुल टैक्सेबल होगा, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि फुल टैक्सेबल होगा। मान लो 9000 का आपने मंथली मेंटेनेंस चार्जेस रिसीव किया तो एवरीथिंग विल बी टैक्सेबल, ऐसा नहीं है कि एक्सेस अमाउंट टैक्सेबल होगा, एवरीथिंग विल बी टैक्सेबल। क्लियर है गाइस? यस। अब बात बाकी मिसलेनियस सर्विसेज इसमें आते हैं, जो स्टैंड अलोन सर्विसेज है, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, विच डज नॉट ऑल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्रूट्स। पब्लिक कन्वीनियंसेस सच एज facilities of bathrooms, washrooms, urinal toilets are totally exempted, ठीक है। स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, अगर एनिमल स्लॉटर सर्विस दिया जाए, एनिमल का स्लॉटर करके कंस्ट्रेशन आप कलेक्ट कर रहे हो तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ट्रांसफर ऑफ अ गोइंग कंसर्न, इफ एनी गोइंग कंसर्न हैज बीन सप्लाइड, ट्रांसफर हो गया है तो सप्लाई ऑफ सर्विस के अंडर में दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड। लैंड लाइब्रेरीज जो बुक्स लैंड करते हैं, फीस चार्ज करते हैं, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। कोई भी बिजनेस एग्जीबिशन अगर इंडिया के बाहर हुआ है और उसको कोई बिजनेस एग्जीबिशन में कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है तो दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन बाय एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड। बट इसके जो चार्जेस है, एडिशनल चार्जेस, सपोज डुप्लीकेट बिल हो गया, टेस्टिंग फीस हो गया, एप्लीकेशन फीस हो गया, दैट इज टोटली टैक्सेबल बिकॉज ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस नहीं है। Access to road or a toll, I mean bridge, on the payment of annuity or toll charges, that is totally exempted in GST. Foreign diplomatic mission अगर इंडिया में सर्विस दे रहे हैं, totally exempted. FSACI charges, guys, although ये अभी ये सब है ना बेटा डिलीट हो चुका है,
18 मई 2018 जुलाई मैंने आपको बोल चुका है, तो जून 23 वाले बच्चे आप ध्यान रखेंगे ये सब डिलीट हो चुका है। एक दो बहुत सारे एग्जामिशंस में डिलीशंस हुए हैं, बट वो जनवरी 23 के बच्चों के लिए रेलिवेंट नहीं है। जो जून 23 के बच्चों है, आप में उसके पहले आप वीडियोस देख लेना मेरा, आपको उसका वीडियो अलग से दिख जाएगा। लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन जो बेसिकली FSSAI का, आपको मैगी का याद होगा, ठीक है, जो FSSAI का लाइसेंस अपने को लेना पड़ता है। हर एक फूड ऑपरेटर को FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ता है। तो FSSAI का लाइसेंस लेने के लिए मेरे को GST का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो ये जो सप्लाई किया जाएगा इस पे GST नहीं लगेगा। कंट्रीब्यूशन अंडर एनी पेंशन स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, अगर मैं कलेक्शन कर रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ पेंशन स्कीम में, तो उसके ऊपर जो भी सर्विसेज मेरे को दिए जा रहे हैं उस पर GST एग्जेम्प्टेड है। अटल पेंशन योजना भी एग्जेम्प्टेड है। रेंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, रेंट ऑफ अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, आई रिपीट, रेंट ऑफ अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर यूज एज रेसिडेंस। जहाँ पे रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी आएगी फुल्ली टैक्सेबल है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी यूज एज रेसिडेंस है फुल्ली टैक्सेबल नहीं है, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। RTA के अंदर में अगर मैं इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। ये फीफा वर्ल्ड कप ये सब पहले था बेटा, अब कोई काम का नहीं है अभी। एनीवेज ये सब रेलिवेंट नहीं है, ये सब मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए दिया है। अगेन फीफा से रिलेटेड कोई भी चीज आपको नहीं देखना है। ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान, ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान से रिलेटेड जो भी सर्विसेज एसोसिएटेड है दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड। ओके, सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज जो इसरो, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन या न्यू स्पेस इंडिया, ये तीन कंपनी है, अगर ये तीनों दे रहा है सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज इंडिया में, तो दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड इन GST। ओके, दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड इन GST। तो ये थे कुछ बहुत ही फास्ट में मैंने CGST का आपको सर्विसेज पढ़ाया। अब अपने पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ एडिशनल सर्विसेज एग्जाम फ्रॉम IGST। तो यहाँ पे देखो जो CGST में सर्विसेज एग्जाम थे वो IGST में, तो IGST में एडिशनल भी है क्योंकि ये क्रॉस बॉर्डर को डील करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है कि यहाँ पर एक चीज जो आप समझ लो, हम इंपोर्ट का बात करेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट तो बेटा अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो जीरो रेटेड हो जाएगा, आपको याद होना चाहिए। अगर आप सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हो और इंडिया में फॉरेन करेंसी में रिसीव किया हो तो दैट्स एक्सपोर्ट इज जीरो रेटेड। लेकिन अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो कौन से इंपोर्ट में टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में वी नो उस पर RCM लग जाता है। तो सर्विसेज रिसीव फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, सर्विसेज रिसीव फ्रॉम प्रोवाइडर सर्विस लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब जो इंडिया के बाहर प्रोवाइडर है और मैं इंडिया में हूँ, मैं कौन हूँ, मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ और मैं बिजनेस से रिलेटेड नहीं हूँ, अदर देन कॉमर्स इंडस्ट्री या बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड मैं सर्विस ले रहा हूँ, तो दैट इज नॉट अ टैक्सेबल सप्लाई। मतलब पर्सनल पर्पस के लिए अगर कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में इंपोर्ट कर रहा है कोई भी सर्विस, दैट इज नॉट टैक्सेबल। लेकिन गाइज आप देखोगे ये जो एग्जेम्पशन है ये OIDAR के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये OIDAR के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। आप ऑनलाइन में लेंगे तो टैक्सेबल है। लेकिन अगर आपको याद होगा 53 NTOR याद है, खाली NTOR वाला जो है वो टैक्सेबल नहीं है, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है देख भाई अगर तुम इंपोर्ट कर रहा है कोई भी सर्विस इंडिया के बाहर अदर देन बिजनेस टैक्सेबल नहीं है, लेकिन ये टैक्सेबल होगा OIDAR के लिए, ये टैक्सेबल होगा OIDAR के लिए। और कुछ याद आ रहा है, वेसल, गाइस प्लीज बोलो, एयरक्राफ्ट तो एग्जाम था। अगर मैं इंडिया के बाहर से इंपोर्ट कर रहा हूं गुड्स वेसल के थ्रू, तो क्या ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्या? नहीं, किसी भी पर्पस के लिए करिए टैक्सेबल होगा। ये क्लियरली बोला है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम इंडिया आउटसाइड इंडिया टू इंडिया। तो अगर मतलब ये दो के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं, ये दो हमेशा टैक्सेबल होगा, ठीक है। अगर आप कोई भी सर्विस चैरिटेबल एंटिटी से रिसीव कर रहे हैं, ये भी आपको पढ़ाया गया था चैरिटेबल एक्टिविटी में, कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटी, चैरिटेबल ट्रस्ट अगर इंडिया के बाहर से सर्विस इंपोर्ट कर रहा है, नथिंग टैक्सेबल। नेक्स्ट सेम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कुछ याद करो, ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स इंडिया के बाहर से सप्लाई रिसीव कर रहा है, और वो कौन है, वो कौन है, वो ICAI है, वो ICSI है, वो ICMI है। दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग एजुकेशन अंडर अ रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन, दे आर नॉट प्री स्कूल, दे आर नॉट वोकेशनल एजुकेशन। तो अगर ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स इंडिया के बाहर से सप्लाई किया जा रहा है टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अदर देन दे टू प्री स्कूल एंड एजुकेशन अप टू एज अ पार्ट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन कोर्स, मतलब जो क्वालिफाइड डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो ही इसमें एग्जेम्प्ट होंगे, वो इसमें क्या होंगे, एग्जेम्प्ट होंगे। क्लियर है सर। RBI से सर्विस लिया गया फॉर RBI ने सर्विस लिया इंडिया के बाहर से फॉर मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, टोटली एग्जेम्प्टेड, ठीक है। Import of services by United Nations or a specified organization for official use of UN or specified international organization, सब रेलिवेंट नहीं है, बस एक बार देख लेना बेटा, ये सब बेटा रेलिवेंट नहीं है, एक बार देख लेना, ठीक है। मेजर जो रेलिवेंट था वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब देखो देखो ये समुद्र चैप्टर है, बट लेट मी टेल यू एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे इसमें से।
You just be prepared. You just be prepared for the entire chapter. This is all from this chapter. एंड जितना मैंने आपको पढ़ाया मोर देन सफिशिएंट है. मैंने आपको ट्राई किया कम से कम टाइम में. आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट की कम से कम टाइम में आपको ये हरक्यूलिन चैप्टर जो है ये रिवाइज करवा सकूं. ऑल्दो अगर आपको ये फास्ट लगा होगा, डोंट वरी, यू हैव एन ऑप्शन टू रिवाइंड एंड फॉरवर्ड. आप इसको फॉरवर्ड एंड रिवाइंड करके देख सकते हो. बट जितना मैंने कराया, ट्रस्ट मी, इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एग्जामिनेशंस. और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इवैल्यूएट द टैक्सेबिलिटी. तो आप इसका आराम से क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, वेन एवर यू आर राइटिंग द आंसर, यू हैव टू सपोर्ट योर रीजन दैट दिस इज एग्जेम्प्टेड बाय दिस नोटिफिकेशन नंबर 12/17 CTR डेटेड 28 जून 2017. ये है CGST का नोटिफिकेशन. वैसे IGST का नोटिफिकेशन क्या है? IGST का नोटिफिकेशन नंबर 9 देख लेना. IGST का नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 है. IT मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स रेट नोटिफिकेशन डेटेड 28 जून 2017. ओके, सो दैट्स इट गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट. प्लेस ऑफ सप्लाई का रिवीजन वीडियो आपके लिए ऑलरेडी डाल दिया गया है अपने मेरे यूट्यूब चैनल में. डू वॉच इट. बहुत ही डिटेल्ड में, आई मीन बहुत ही समराइज वे में मैंने बताया है. तो आई होप यू लाइक द वीडियोस. एंड जितने भी मेरे नोट्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल में है. डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना. वहाँ पे मैंने नोट्स सब मैं टाइम बाय टाइम में अपलोड करना स्टार्ट कर दिया हूँ. नेक्स्ट मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट रिवीजन में, जो भी एज पर द शेड्यूल है तो आपको पता चल जाएगा. थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन अपने मिलते हैं. आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा. जो बच्चे यूट्यूब में देख रहे हैं, डू कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सेशन कैसा लगा. थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.